Hello, how are you? Today we are going to start the chemical properties of metals. In last video I told you about the metals and non-metals and characteristics of metal and non-metal and physical properties of metal and non-metal. Now we are going to study about the chemical properties of metal. Metal are highly reactive in nature, so it can easily react with oxygen and air. Reaction of metals with oxygen. जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म CuO, कॉपर ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, बनता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3. जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे that are the ionic in nature and they are mainly basic in nature because they are dissolving in water and changes into its ion. कॉपर ऑक्साइड किसमें चेंज होगा? Cu2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो किसमें चेंज होगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव and oxygen 2 negative. That's why it is ionic in nature. Some characteristic properties of metal oxides. जितने भी metal oxides होंगे they cannot easily soluble in water. Most of metal oxides are insoluble in nature. Only जो highly reactive है sodium, potassium, they can dissolve into water. Some metal oxide dissolve in water like Na2O. सोडियम का ऑक्साइड है Na2O. कैसे बनता है ऑक्साइड? Na की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2. ये इंटरचेंज होगा, क्या बनेगा? Na2O. सेम लाइक एट पोटेशियम, ये क्या बनेगा? CuO. इंटरचेंज हो जाती है वैलेंस आयंस, 2 ऑक्सीजन का 3. Potassium positive, oxygen 2 negative, it will form K2O. In 9th class you studied about how chemical formula is formed. Na2O, sodium oxide. When it reacts with water, it will form sodium hydroxide, NaOH. When K2O react with water, it will form KOH because these are highly reactive in nature. In reactivity series they are, I already told you that sodium and potassium kept inside the kerosene oil because they are hygroscopic in nature and can react with air. Water catch the fire, that's why it kept inside the kerosene. Second property is amphoteric in nature. Amphoteric, those show both characteristic, acidic as well as base. जो एसिड के साथ भी रिएक्शन दे और बेस के साथ भी उसे हम कहेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर. मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट metal oxide are basic in nature. They dissolve in water to give an alkaline solution. Most of ये बनाएंगे salts. MgO plus H2SO4 बनेगा MgSO4 plus H2O. CuO plus H2SO4 बनेगा CuSO4 plus H2O. Amphoteric nature. सभी metal oxides ये reactions नहीं देंगे. Only सब मेटल ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया या जिंक ऑक्साइड्स हो जाता है, ये बेस और एसिडिक दोनों कैरेक्टर शो करेंगे. दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. तो जो दोनों के ही साथ रिएक्शन दे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, उसे हम कहेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर. लाइक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, HCl इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. इट विल कन्वर्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O. एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन इट विल react with NaOH, it will give aluminium, aluminate, NaAlO2 plus H2O. ZNO रिएक्शन करेगा Cl के साथ जिंक क्लोराइड प्लस H2O. ZNO रिएक्शन करेगा NaOH के साथ सोडियम जिंकेट बनेगा और वाटर. तो these metal oxide can react with acid as well as the base. That's why it is known as amphoteric in nature. Most of metals do not react with the air. As I already told you that sodium and potassium kept inside the kerosene, kept immersed inside the kerosene because they are highly reactive with water. They can catch the fire. They cannot react with directly with the
वाटर। सेम अगर हम आयरन फिलिंग्स को हीट करते हैं तो गर्म करने पे आयरन क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है, इट गिविंग द हीटिंग इफेक्ट, बट इट विल नॉट बी गिव अनदर रिएक्शन। कॉपर ब्लैक पड़ जाता है, तो देयर आर गोल्ड और सिल्वर रिएक्शन ही नहीं करते, तो ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ये ओनली रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ विद वाटर एंड एयर बोथ, दैट इज द एक्टिवनेस फॉर द ऑक्सीजन। ऐसे कॉपर क्या बनाते हैं, CuCO3 into CuO होल ट्वाइस, दैट इज आल्सो ए रस्ट। सिल्वर, अगर चांदी हमारे घरों में बहुत टाइम से रखी हुई है तो वो क्या होती है, ब्लैक पड़ जाती है, गोल्ड की भी थोड़ी सी पॉलिश डाउन हो जाती है, फिर वो दोबारा अपनी शाइनिंग में आ जाता है, तो दे आर नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल जब रिएक्शन करेगा वाटर से तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, बेसिक इन नेचर, Na+H2O, because these are highly reactive in nature, they can react easily with water, that's why, and give explosive reaction, they can catch fire with water, hygroscopic in nature, that's why it will cap inside the kerosene oil कि ये वाटर के कांटेक्ट में ना आए। Na+H2O क्या बनेगा, 2NaOH plus H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम और वाटर क्या बनेगा, 2KOH plus H2। इनकी कंपैरिजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। ये रिएक्शन तो करते हैं बट इतने ज़्यादा वॉलेंट नहीं होते जितने ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं। इसमें जो हीट निकलती है वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ स्टिक हो जाती है। कैल्शियम और वाटर रिएक्शन करेगा, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा, इट विल गिव रिएक्शन विद हॉट वाटर। Mg+H2O बनेगा MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। एल्यूमिनियम और आयरन, they will not react with cold or hot water, not react with cold and hot water, only react with steam, which aluminium and iron। एल्यूमिनियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। आयरन रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट, एल्यूमिनियम और आयरन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ओनली स्टीम, नॉट कोल्ड एंड हॉट वाटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेड, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। हमारा ऑर्डर क्या होगा, वाटर के साथ जब जितने भी मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, हाईली रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, वो किसके बनते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड के, बिकॉज दे आर लशरस इन नेचर एंड नॉन रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करेंगे, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा जब HCl के साथ, बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक और आयरन बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। कॉपर, मर्करी और सिल्वर ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो ये इनका ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर विद एसिड्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, copper, Hg10 Ag, that is the sequence of reactivity with the acids. Clear to all? How do metals react with solution of other metals salt? In chapter first you have studied about the displacement reaction कि एक हायर एक्टिव मेटल अपने से लोअर एक्टिव मेटल को उसकी पोजीशन से हटा के उसकी पोजीशन ले लेगा, that is known as displacement reaction. By displacement reaction metal salt react with other metal salts. High reactive metal take place the position of less reactive metal is known as displacement reaction. अगर हमारे पास कोई भी मेटल A है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन B के साथ रिएक्शन करता है, इट विल फॉर्म, A ने B की पोजीशन ले ली तो क्या बना, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A,
रिमूव किया हुआ मेटल बी, सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, फॉर एग्जाम्पल जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक इस H को रिप्लेस कर देगा, यहाँ बना ZnSO4 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा FeSO4 प्लस Cu, बट कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द जिंक, तो देयर इज नो रिएक्शन। तो that is a displacement reaction, that is high reactive metal take place the less reactive metal position known as displacement reaction. I am going to explain it with the help of reactivity series. क्या है reactivity series? It is arrangement of elements or metals into decreasing order of reactivity is known as reactivity series. As name indicate how they react, activity series, the arrangement of metals in a vertical column in order of their decreasing reactivity is called activity series or reactivity series of metals. Like reactivity series, the arrangement of metals in a vertical column in order of their decreasing reactivity is called activity series or reactivity series of metals. Here you have to learn this series. सबसे पहले क्या आएगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड. Sodium and potassium is the most reactive in nature. That's why they are the top most. And silver and gold is the least reactive in nature. जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेंगे. हाइड्रोजन के नीचे क्या है? कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड. तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट की पोजीशन ले लेते हैं और नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज. ये इसकी इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज. एक तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी, हम कंपैरिजन करते हैं कौन सा ज्यादा एक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव ऑन कंपैरिजन ऑफ मेटल्स. कंपैरिजन ऑफ मेटल्स. सेकेंड, कौन से मेटल्स हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे और कौन से मेटल हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेंगे. लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन का हमें पता लगेगा यहाँ से. लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कौन ज्यादा एक्टिव है और कौन लो रिएक्टिव है. हाईएस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव. लीस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑन कंपैरिजन ऑफ मेटल्स हो रहा है. लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाईएस्ट रिएक्टिव एंड लोएस्ट रिएक्टिव नेचर का हमें पता लगेगा. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज. इसके थ्रू ही हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाउ मेटल्स रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. वो एक मेटल दूसरे मेटल की पोजीशन कैसे लेगा. तो जो हाई रिएक्टिव होगा वो अपने से लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा और उसकी पोजीशन ले लेगा. Clear to all of you? These are the displacement reaction according to the reactivity series. Thank you.